The truth is going to offend your mind. सच आपके मनों को नाराज करेगा। And if you're a religious mind, you will get offended today. और अगर आपका धार्मिक मन है, धार्मिक बुद्धि है, तो आप बिल्कुल नाराज होंगे आज। But लेकिन after truth offends you, truth will set you free. एक बार जब सच आपको नाराज कर लेगा, उसके बाद सच आपको आजाद कर देगा। Right? And I pray today you will experience that Father's love. और मेरी यही प्रार्थना है कि आज आप पिता के उस प्यार का अनुभव करें And know Him. और उसको जानें And know how much He loves you. और जान लें कि वो आपसे कितना प्यार करता है। The Bible says in 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ Jesus, he is a new creation. दूसरा कुरिन्थियों 5:17 वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि बन गया है। New creature. The Bible says that he is a new creature. वो एक नया प्राणी, एक नई प्रजाति बन गया है। New creature. एक नई प्रजाति। But not in your body, अपने शरीर में नहीं, not in your soul, अपने प्राण में नहीं, in your spirit. अपनी आत्मा में। Amen? आमेन। Salvation did nothing to your body and your soul. उद्धार ने आपके शरीर और आपके प्राण पे कोई प्रभाव नहीं डाला। But your spirit man was completely regenerated. लेकिन आपका आत्मिक मनुष्य पूरी तरह से नया हो गया। You are not that same person anymore. See, that's what people say. I came to Christ and I don't do this anymore. And it's a good thing, but what I'm saying is, it's not the behavior modification that is the greatest testimony. It is that you have become a brand new creation. That's the greatest testimony. अब आप वो पुराने व्यक्ति नहीं रहे। कई लोग कहते हैं कि अब मैं मसीह में आ गया तो जो मैं पहले करता था अब नहीं करता। वो अच्छी बात है, लेकिन मसीह में आना व्यवहार का बदल जाना नहीं है। लेकिन जो पहले आप प्राणी थे, अब आप एक नए प्राणी बन गए हैं। Amen? Let's see this in Ephesians 4:24. I want to show you something. इफिसियों 4:24 में मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। Let's see what the Bible says. बाइबल क्या कहती है? And put on the new nature. उस नए व्यक्तित्व को धारण कर ले। Put on new nature, the regenerated self created in God's image. उस नए व्यक्तित्व को धारण कर लें जो परमेश्वर के सदृश बनाया गया। Put on. उसको पहन लें। Hina, can you put that in the Greek? I want to show you that it's enduo. एंडुओ शब्द का इस्तेमाल है यूनानी में, and it means to sink in. जिसका अर्थ है एक हो जाना। So, okay, let me show you an example. All right? So, holiness is not about becoming holy, you wear holiness. So I put on this new garment and that makes me holy. पवित्रता पवित्र हो जाने के बारे में नहीं है, लेकिन उसको उस पवित्रता को धारण कर लेने के बारे में है कि मैंने नए वस्त्र डाल लिए और मैं पवित्र हूँ। See, this word enduo, it means sinking into you becoming one. You wear a new identity. और एंडुओ शब्द का अर्थ है जैसे कपड़ों को धारण कर लेना। आप एक नई पहचान धारण कर लेते हैं। Okay, let's go back to that scripture. And I want to show you this holiness is not your holiness. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पवित्रता आपकी पवित्रता नहीं है। Okay? ठीक है? It is created in God's image in true righteousness and holiness. ये परमेश्वर की तस्वीर के अनुसार बनाई गई सच्ची धार्मिकता और सच्ची पवित्रता के अनुसार है। Amen? Amen. So you are not holy because you fast for 40 days in Lent. You are holy because Jesus Christ, the Son of living God, came to live in you and He gave you a new identity. आप इसलिए पवित्र नहीं हुए क्योंकि लेंट में आपने 40 दिन उपवास किया, लेकिन इसलिए आप पवित्र हो गए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके अंदर रहने के लिए आ गया। Put on, say put on. पहन लो, बोलो पहन लो। Not earn it, कमा लो नहीं, put on. पहन लो। The problem is so many believers have yet not put on this holiness that God has kept for them. समस्या ये है बहुत से मसीहों ने अभी भी उस पवित्रता को धारण नहीं किया, पहना नहीं है जो परमेश्वर उनके लिए दे दी है।
Turn to your neighbor, say, neighbor, पड़ोसी को देखे बोले पड़ोसी, it's time to put on समय है कि पहन लो God's holiness, परमेश्वर की पवित्रता को पहन God's लो, righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लो। Amen? आमेन। God made this suit for me. परमेश्वर ने ये सूट मेरे को बनाया, Not this suit, ये सूट नहीं, this perishable suit. ये जो नाश होने वाला सूट है वो नहीं। I'm talking about when my spirit was recreated, मैं बात कर रहा हूँ जब मेरी आत्मा को पूरी तरह से नया कर दिया गया है, नई आत्मा बना दी गई मेरे अंदर। are you ready? तैयार हैं? My new spirit was made in God class. मेरी नई आत्मा परमेश्वर की श्रेणी में बनाई गई। That means if angels will see my spirit, they'll say, man, he looks just like his father. इसका मतलब जब स्वर्गदूत मुझे देखेंगे तो बोलेंगे ये तो बिल्कुल, ये तो हूबहू अपने पिता जैसा नजर आता When है। angels will look at your spirit man, they will say, they look like their heavenly father. जब स्वर्गदूत आपको देखेंगे तो कहेंगे ये अपने स्वर्गीय पिता की तरह हूबहू नजर आता है। And Satan will fight for you to come to this realization that what God has done in your spirit is your real identity. और शैतान लड़ेगा आप इस हकीकत तक ना पहुंचे कि जो आपके पिता ने आपके साथ कर दिया है वही आपकी असली पहचान है। He wants you to keep feeling broken and I'm this and I'm that in your soul. वो चाहता है कि आप अपने प्राण में निरंतर टूटा हुआ महसूस करते चले जाएं, करते रहें कि मैं टूटा हुआ हूं, मैं तो ऐसा हूं। There is not a single degree of brokenness in your spirit. आपकी आत्मा में रत्ती भर भी टूटापन नहीं है। Okay, now hear this. Am I saying that we don't feel broken? No. क्या मैं ये कह रहा हूं हमें टूटा हुआ महसूस नहीं होता? नहीं। There are times when you will feel broken, समय होंगे जब आपको टूटा हुआ महसूस होगा, but that's not who you are. पर आप वो टूटे हुए व्यक्ति नहीं हैं। That's not your real identity. वो आपकी असली पहचान नहीं है। Your identity is that you are one with Christ Jesus. आपकी पहचान ये है कि आप मसीह यीशु के साथ एक हो चुके हैं। You are complete with Him. आप उसके साथ संपूर्ण हो चुके हैं। Amen. आमीन। So what happens is we don't have confidence because we are still living by law. तो होता ये है हमारे अंदर साहस नहीं है क्योंकि अभी भी हम नियमों के द्वारा जी रहे हैं। We still think, man, I haven't done this, I haven't done this, I failed in this, but हम अभी भी सोचते हैं, salvation happened in your spirit. हम अभी भी सोचते हैं मैंने ये नहीं किया, मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं किया, लेकिन उद्धार आपकी आत्मा में हुआ है। Say, I'm a spirit. बोले मैं आत्मा हूँ, I'm a spirit. मैं आत्मा हूँ। And you are not just ordinary spirit. और आप साधारण आत्मा नहीं हो। You know, there spirits, like, I don't want to go deep, but spirits have different categories in the spirit realm. मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन आत्मिक दुनिया में आत्माओं की श्रेणियां होती हैं। There are demons, दुष्ट आत्माएं होती हैं, there are levels to that. उसमें भी श्रेणियां होती हैं। There are angels, स्वर्गदूत होते there हैं, are levels to that. उनमें भी श्रेणियां होती हैं। And then there is God, who is also a spirit. और फिर परमेश्वर है और वो भी एक आत्मा है। That's the highest class. वो सबसे ऊंची श्रेणी की And when आत्मा God है। recreated you, He put you in the highest class. और जब परमेश्वर ने आपको दोबारा से बनाया तो उसने आपको सबसे ऊंचे दर्जे की श्रेणी का That's दर्जा why दिया। the Bible says you are seated with Him far above principalities and powers and might and dominion and every other name that is to be named. इसीलिए बाइबल कहती है कि आप सारी प्रधानताओं से और दुष्ट की ताकतों से बहुत ऊंचा परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं। हर एक शक्ति से जिसका नाम इस दुनिया में या आने वाली दुनिया में होगा, उन सब से कहीं ज्यादा ऊंचा। It's time the church knows who she is. कलीसिया ये जान ले कि वो कौन है, इसका समय आ गया है। It's time born again believers know who they are. ये समय है कि नया जन्म पाए हुए मसीही जान ले कि वो कौन है। They are not miserable, defeated, wimpy people. They are spirit beings who are of the highest category. वो हारे हुए लाचार रोते रहने वाले लोग नहीं, लेकिन वो सबसे ऊंची श्रेणी के आत्मिक जन हैं। Amen. आमीन। Say, I am God class. बोले मैं परमेश्वर की श्रेणी का हूं।
I was doing a conference of a church, एक चर्च की मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा था, and I was teaching about this. मैं इसके बारे में सिखा One रहा था. uncle got very offended. एक अंकल मुझसे बहुत नाराज हो गए. He said, "Are you trying to say that God has kept us equal to Jesus?" और वो कहने लगे, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें यीशु के बराबर बना दिया है? I said, "Uncle, मैंने कहा, अंकल, that's exactly what I'm saying. मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ. It's good that you got it." अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया है. The Bible says, Bible when we कहती were है- dead in our sins and trespasses. बाइबल कहती है जब अपने अपराधों अपने पापों में हम मरे हुए See, थे, that's why epistles are not written to your body, epistles are written to your spirit, man. इसीलिए जो पत्रियां हैं वो आपके शरीर नहीं आपकी आत्मा को लिखी गई हैं. Paul is saying in Ephesians, you who were dead in your sins and trespasses, God made you alive together with Christ Jesus, and He made you sit together with Christ Jesus in the heavenly places, far above principalities and powers. और पौलुस इफिसियों की कलीसिया से उस पत्री में यही कह रहे हैं कि जब तुम अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए थे, तो परमेश्वर ने मसीह के साथ तुम्हें उनमें से जिंदा किया और फिर मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में ऊंचे स्थान पर बैठा दिया, हर एक शक्ति, हर एक प्रधानता से कई ज्यादा ऊपर. Amen? So I received my holiness not because of what I do, but because of my birth. मैं अपनी पवित्रता को अपने कामों के कारण नहीं पाया हूं, लेकिन अपनी पैदाइश के कारण पाया हूं. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? You were born holy. आप पवित्र पैदा हुए हो. That's why Bible says now do holy. इसीलिए बाइबल कहती है आप पवित्रता करो. But doing holy will never make any man holy. लेकिन पवित्रता करने से कोई पवित्र नहीं होता. Right? That's what we preach the gospel. इंसान के अच्छे कर्म फटे पुराने चिथड़े. Remember? That's the gospel we preach. ऐसे ही हम सुसमाचार प्रचार करते हैं. All the good works are like filthy rags. Because doing holy cannot make anybody holy. It's your new birth, the new man, which is created in true righteousness and holiness. When you get born from the Spirit of God, that's what makes you holy. क्योंकि आपके अच्छे काम फटे पुराने चित्रों की तरह हैं, तो करने के द्वारा नहीं, लेकिन उस नए मनुष्यत्व के द्वारा जब आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं, उस कारण से आप पवित्र हैं. Holiness is a nature. पवित्रता एक स्वभाव है. Are you here? Like sin is a nature. जैसे पाप एक स्वभाव है. When a fish is born, जब एक मछली पैदा होती है, who teaches the fish to swim? तो मछली को तैरना कौन सिखाता है? It's in the nature of the fish to swim. मछली के स्वभाव में तैरना है. In the same manner, ठीक उसी तरह when you are born of God, जब आप परमेश्वर से पैदा होते हैं, it's in your nature to walk in victory. ये आपके स्वभाव में है कि आप जय में जिएं. A believer living in defeat is unscriptural. एक विश्वासी जो हार में जी रहा है, ये बात वचन के विरोध में है. Yes, I mean, like we can face storms, but the DNA that is in us is designed so that you will overcome everything that comes against you. हमारा सामना तूफानों से हो सकता है, लेकिन जो हमारी बनावट है उसके अनुसार हम हर एक आने वाले तूफान पर जय पाते हैं. Amen. Ephesians 1:18 says that the same power that raised Lord Jesus Christ from the dead now is in our spirit man. इफिसियों 1:18 वचन कहता है, वही सामर्थ्य जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिंदा कर दिया, अब वही सामर्थ्य हमारे बीच में रह रही है, हमारे अंदर रह रही है. So if there is a believer who has a cancer in their body, अगर कोई विश्वासी है जिसके शरीर में कैंसर है, that cancer is millimeters away from the dead resurrection power. वो कैंसर मिलीमीटर दूर है मुर्दों को जिंदा करने वाली सामर्थ्य से. And if we can learn to release that power that is in us, it is going to kill every cancer, it is going to destroy every tumor, it is going to destroy arthritis, it is going to destroy every sickness and disease. और अगर हम ये सीख गए कि उस सामर्थ्य को
अपने आत्मा से अपने शरीर में कैसे लेकर के आना है, तो वो हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर, अर्थराइटिस, गठिए के रोग, हर एक बीमारी का नाश करती चली जाएगी। That's why Bible says now work out your salvation. We are not working for our salvation, we are working out our salvation. इसीलिए बाइबल कहती है कि अपने उद्धार को अब भीतर से बाहर लेकर के आना है। अपने कामों से उद्धार को कमाना नहीं है, अपने भीतर से बाहर उस उद्धार को लेकर के आना है। Amen. That Zoe life is already in your spirit man. वो परमेश्वर का जोई जीवन पहले से ही आपके आत्मा में आ चुका है, We just have to bring it out. हमें बस उसको बाहर लेकर के आना है। As I was saying, you cannot do anything that will make God love you less. जैसा मैं कह रहा था, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसकी वजह से परमेश्वर आपसे कम प्यार करे। But you can do many things which will make you love God less. लेकिन आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिसके कारण आप परमेश्वर से प्यार करना कम कर दें। That's why sin is terrible, because sin hardens our heart against God. इसीलिए पाप इतना खराब है क्योंकि वो हमारे दिल को कठोर कर देता है परमेश्वर के। Hear this. सुनिए, Sin hardens our heart towards God, but it does not have the power to harden God's heart towards you. पाप हमारे दिल को परमेश्वर के विरोध में कठोर कर देता है, लेकिन पाप में वो शक्ति नहीं कि वो परमेश्वर के दिल को हमारे लिए कठोर कर पाए। When Adam sinned, जब आदम ने पाप करा, it was Adam who ran away from God. तो आदम था जो परमेश्वर से भागता हुआ चला गया। The response of sin in Adam's life was that he ran away from God. पाप की जो प्रतिक्रिया आदम के जीवन में थी वो ये थी कि आदम परमेश्वर से भागता हुआ दूर गया, And the response of sin to God was that God ran after Adam. और पाप की प्रतिक्रिया परमेश्वर की तरफ से ये थी कि परमेश्वर भागता हुआ आदम के पास आया। Amen? आमेन। But if you understand who you are, लेकिन अगर आप जान गए आप कौन है, in your spirit, अपनी आत्मा में, there is no sin. आपकी आत्मा में कोई पाप नहीं है। In your spirit man, अपनी आत्मा में there is no sin. आप पाप मुक्त हैं। Wow. Thank you for this thundering silence. इस घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद। It's okay. I'm believing you are allowing this to settle in your heart. मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि आप इसको अपने दिल में उतरने दे रहे हैं। So God is not dealing. When God is speaking, you will see these verses. It's straight away talking to your spirit man. जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो आप देखेंगे वो बात है सीधा आपकी आत्मा में उतर रही है। Amen? That's why if any man be in Christ, he's a new creation. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। Salvation did nothing to your body. उद्धार ने आपके शरीर में कुछ नहीं बदला। If you were fat before you were born again, you'll be fat after you get born again. अगर आप उद्धार पाने से पहले मोटे थे, उद्धार पाने के बाद भी आप मोटे ही रहेंगे। But inside, अंदर it's a brand new creation that is living in that body now. उस शरीर के अंदर एक बिल्कुल नई सृष्टि पैदा हो चुकी है। Amen? And that's why every day we have a choice whether I live from my spirit, I live from my soul, or I live from my body. इसलिए हर दिन हम ये चुनाव कर सकते हैं कि क्या मैं अपने शरीर के द्वारा जीऊं, अपनी भावना, अपने प्राण के द्वारा, या फिर अपनी आत्मा के द्वारा। Amen? आमेन। And do you know the salvation that God did? और क्या आप जानते हैं जो उद्धार परमेश्वर ने किया है, Satan cannot touch it. शैतान उसको छू भी नहीं Can सकता। you put Ephesians 1:13? इफिसियों 1:13। Hallelujah. Praise God. प्रभु का Amen. धन्यवाद हो। हालेलुया। Wow. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लग गई, मोहर लग गई। Your spirit is sealed with the Holy Spirit.
आपकी आत्मा पवित्र आत्मा की छाप में ढक चुकी है। And this word sealed comes from the Greek words phrages. और ये जो छाप शब्द है यूनानी के फ्रेगीस शब्द से आता है। That means a seal that does not allow contamination to come inside. और ये दर्शाता है एक ऐसी छाप को जो गंदगी को भीतर आने नहीं देती। If God, so many people think that what God did, I did something wrong and I've lost my salvation. कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो किया था, लेकिन जब मैंने गलती करी तो अपने उद्धार को गवा दिया। If you can lose it like that, अगर ऐसे ही गवा सकते हैं, like you lose your car keys or you जैसे lose गाड़ी your की चाबी glasses, खोते हैं, चश्मा खोते हैं, well, then God isn't very good at saving, right? तो फिर प्रभु ज्यादा अच्छा नहीं है उद्धार देने में। When He recreated your spirit, He put a seal. And you know who is the seal? He Himself is the seal. He's like, I will not allow any contamination to go through me and contaminate their spirit man. जब परमेश्वर ने आपकी आत्मा को दोबारा से बनाया तो उस पर एक छाप लगा दी ताकि कोई गंदगी उसमें दोबारा प्रवेश ना कर पाए। और जानते हैं वो छाप क्या थी? परमेश्वर स्वयं आपके जीवन के लिए छाप बन गया, उसने आपकी आत्मा को ढांप लिया। So it's like your spirit वो ऐसा है जैसे आपकी आत्मा completely covered by the Holy Spirit. पूरी तरह पवित्र आत्मा के अंदर छुपी हुई है। Your body, आपका शरीर, your soul, आपका प्राण, then Holy Spirit, फिर and then पवित्र your spirit. आत्मा और तब आपका आत्मा है। Your spirit cannot be contaminated. आपकी आत्मा को मलिन नहीं किया जा सकता। He Himself became the seal of promise. वो स्वयं ही सील, वो छाप बन गया वायदे की। So no matter where you are right now, तो आप जहां कहीं भी हैं इस समय, no matter if you think I have messed up, आपको चाहे कुछ भी लगता हो कि मैंने तो गलती कर दी है, मुझसे गलती हो गई, you're still holy. अभी भी उतना ही पवित्र हो। It's very offending to religious और mind. धार्मिक बुद्धि के लिए ये बहुत नाराज करने वाला मुद्दा है। Ooh. But you don't know what Mr. Chopra did last summer. आपको नहीं पता चोपड़ा साहब ने पिछली गर्मियों में क्या किया था। If you are born again, अगर आप नया जन्म पा चुके हो, your doing does not change who you are. तो आप जो करते हो उससे आप जो हो वो नहीं बदलेगा, But who you are will लेकिन- surely change your doing. लेकिन आप जो हो उससे आप जो करते हो जरूर बदल जाएगा। Some people say, what are you teaching? कुछ लोग कहते हैं आप क्या सिखा रहे हो? You're giving people license to sin. आप लोगों को पाप करने का लाइसेंस दे रहे हो। Did anybody give you license to sin? आपको किसी ने लाइसेंस दिया सिन करने पाप करने के We लिए? all were sinning the day we got born without license. जिस दिन हम पैदा हुए थे तब से अब तक हम पाप ही कर रहे थे बिना लाइसेंस के। We don't need a license. हमें लाइसेंस नहीं चाहिए पाप करने के लिए, That was in our nature. वो हमारे स्वभाव में था। Sin is a nature. पाप एक स्वभाव है। Our spirit हमारी आत्मा was sinful. वो पाप से भरी हुई थी। We were wearing this nature. हम उस स्वभाव में बने हुए थे, उस And स्वभाव now को लिए हुए God थे। gave us a brand new spirit. और अब परमेश्वर हमें एक नया आत्मा दे दिया And है। God is saying, wear this new nature. और परमेश्वर कह रहा है इस नए स्वभाव Put को पहन लो, on धारण this कर new लो, man इस नए मनुष्य that को is पहन लो, created in perfect righteousness and holiness. जो सिद्ध धार्मिकता और सिद्ध पवित्रता में बनाया गया है। Amen. आमेन। I am holy मैं पवित्र हूँ because this is the nature my Father has given me. क्योंकि यही स्वभाव है जो मेरे पिता ने मुझे दिया है। Okay, it's time to make some. कुछ घोषणाएं करने का समय। Now, this confession will make religious people cringe. और ये घोषणाएं धार्मिक लोगों को दांत पीसने पर मजबूर कर देंगी। Ready? तैयार हैं? Say, I am holy. बोले मैं पवित्र हूँ। Wow. अच्छा, पवित्र हो? ओ कितने घंटे बाइबल पढ़ते हो तुम? How many hours do you read the Bible? नहीं, मैं इसलिए पवित्र नहीं हूँ. I am not holy because of how much Bible I read. That's man's righteousness. वो मनुष्य की धार्मिकता है।
I am holy because I got born from a holy God. मैं इसलिए पवित्र हूं क्योंकि मैं एक पवित्र परमेश्वर से पैदा हुआ हूं. It is my birth that gave me this new nature. मेरे जन्म ने मुझे एक नया स्वभाव दिया है. Amen. आमेन. Amen. The day we remember, the day we realize it, the day we'll meditate and let this truth sink in, it would be so hard to sin. जिस दिन हम ये जान लेंगे, इस सच को अपने अंदर उतरने देंगे, पाप करना इतना कठिन हो जाएगा. See, like monkey can climb a tree very easily. जैसे मंकी बंदर आसानी से पेड़ पर चढ़ It's सकता his nature. है, उसके स्वभाव में. It's very difficult for us. हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है. That's not our nature. हमारे स्वभाव में नहीं है. Once you understand what's your real nature, एक बार आप समझ गए आपका सही नेचर क्या है, living contrary to that will be difficult. उस स्वभाव के विपरीत जीना बड़ा कठिन हो It जाएगा. will not be easy, it will be so hard. आसान नहीं होगा. फिर उसके विरोध में जीना बड़ा कठिन हो जाएगा. Amen. Say, put on. बोले पहन लो, Put on. पहन लो. Say again, I'm holy. बोले मैं पवित्र हूँ. Why do we come to church? हम क्यों चर्च आते हैं? Coming to church doesn't make you holy. चर्च आने से हम पवित्र नहीं बनते. Reading the Bible doesn't make you holy. बाइबल पढ़ने से हम पवित्र नहीं बनते. But holy people come to church लेकिन पवित्र लोग चर्च आते हैं because that's their father's house. क्योंकि ये उनके पिता का घर है. Amen. आमेन. Whatever we are doing now, because we are doing it not because we can earn anything from God. जो कुछ हम कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे कि परमेश्वर से कुछ कमा लेंगे. We are doing it इसलिए कर रहे हैं because it's the fruit overflow of our new nature. क्योंकि हमारे इस नए स्वभाव का फल है जो अपने आप जीवन से निकलता रहता है. Amen. आमेन. Wow. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. How many people think you're perfect? Lift up your hand. कितने लोगों को लगता है कि वो सिद्ध हैं? अपने हाथों को उठा लें. How many people think you're imperfect? Lift up your hands. कितने लोगों को लगता है कि वो असिद्ध हैं? अपने हाथों को उठा लें. बाकियों को कुछ लगता ही नहीं है. The others don't think anything about themselves. Okay, okay. ठीक है. If we live by our bodies and our soul, we'll never feel that we are perfected. अगर अपने शरीर और प्राण के अनुसार जिएंगे तो कभी नहीं लगेगा कि हम सिद्ध हो चुके हैं. Perfect biblical definition is not that you'll never make a mistake. बाइबल की सिद्ध होने की परिभाषा ये नहीं है कि आप दोबारा कभी गलती नहीं करेंगे. Okay, let's see this scripture. आइए ये वचन देखते हैं. Wow. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. Hebrews 10:14. इब्रानी 10 उसका 14. Hebrews 10:14. For by one offering, How many एक offering? चढ़ावे से, कितने चढ़ावों से? for by one offering, he has perfected forever. एक चढ़ावे से उसने हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए What सिद्ध does कर दिया. forever mean? सर्वदा का क्या मतलब होता है? Forever means forever. सर्वदा मतलब हमेशा के लिए, सर्वदा Forever के लिए. means the work has been done. सर्वदा का मतलब है काम खत्म कर दिया एक बारी He में. has perfected forever those who are being sanctified. एक बारी चढ़ावे से उसने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया उनको जिनको वो पवित्र कर रहा था. Now, my body for sure is not perfected. मेरा शरीर तो परफेक्ट नहीं हुआ पक्का. Otherwise, I would have biceps like Pastor Ram. नहीं तो पास्टर राम जैसे बाइसेप्स होते हैं मेरे. Right? Our souls have not yet been perfected हमारे प्राण भी सिद्ध नहीं हुए अभी तक because we still get wrong thoughts. क्योंकि अभी भी हमें गलत विचार आते हैं. But let's see what does Bible say that we have been perfected. लेकिन हम देखते हैं बाइबल किस बारे में कह रही है कि हम Where सिद्ध हो is गए this हैं. perfection? कहाँ है ये सिद्धता? Hebrews 12:23. इब्रानी 12 उसका 23. To the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven, to God the judge of all, to the spirits of just men made perfect.
और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। What God perfected? परमेश्वर ने क्या सिद्ध कर दिया? Your spirit. हमारी आत्माओं को। Your spirit became perfected. आपकी आत्मा सिद्ध हो गई। So if tomorrow anybody argues with you अगर कल को कोई आपसे बहस करता and है they say, और बोलता है अच्छा तुम तो perfect हो, यू आर परफेक्ट, कहना yes in my spirit. बोलना हाँ अपनी आत्मा में, In my spirit, मेरी आत्मा में I have been made perfect. मैं सिद्ध हो चुका हूँ। Amen. आमेन। In your spirit, man, आपकी आत्मा you में have been made perfect. आप सिद्ध बनाए जा चुके हो। Do you know the Bible says that your spirit knows all things? आप जानते हैं बाइबल कहती है आपकी आत्मा सब कुछ जानती है। Not just God's spirit, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा your नहीं, spirit. आपकी आत्मा। You know why? पता है क्यों? Because God's spirit and your spirit are united. क्योंकि आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा एक हो गए हैं। Okay. ठीक। How are you ready? तैयार हो? How awesome your prayer would be if you will know this, that the answer is already in your spirit. कितनी बढ़िया होगी आपकी प्रार्थना जब आपको ये पता होगा कि उत्तर पहले ही आपकी आत्मा में है। No matter what the question is, सवाल चाहे कुछ भी क्यों ना हो, the answer is in your spirit. उत्तर आपकी आत्मा में Because है। your spirit and God's spirit are in continual fellowship. क्योंकि आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा निरंतर एकता में जी रहे हैं। That's why it's very powerful to pray in tongues. इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना To बड़ा pray in शक्तिशाली spirit. है। आत्मा में प्रार्थना करना, Because when you are praying in spirit, क्योंकि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो, the information that is in your spirit is downloaded in your mind. जो जानकारी आपकी आत्मा में है आपके प्राण में उतर जाती है, डाउनलोड हो जाती है। Think about that. How different our prayer would be if you would know it's already in my. I already have all the answers in my spirit, man. सोच के देखिए कितना अलग होगा हमारा प्रार्थना करना जब हम ये जानते होंगे सारे उत्तर हमारी प्रार्थना आत्मा में आ चुके You हैं। don't have to persuade God to get an answer from Him. आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर जवाब के लिए, The answer is in you. वो उत्तर आपके अंदर आ चुका है। 1 Corinthians 6:17 says, "He who is joined to the Lord is one spirit with Him." पहला कुरिन्थियों 6:17 वचन कहता है वो जो मसीह के साथ जुड़ गया उसके साथ एक आत्मा हो गया है। In your spirit, अपनी आत्मा में you are one with God. आप परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। You know, but people say, then Pastor, why do I feel sometimes I'm away from God? And then why do I feel sometimes I am going closer to God? फिर लोग कहते हैं लेकिन फिर पास्टर अगर मैं एक हो गया हूं तो मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो गया हूं कभी कभी, और फिर लगता है कि अब मैं प्रभु के पास आ रहा हूं कैसे करके? Because of your mind. आपके मन के कारण, Because our minds are still not renewed. क्योंकि हमारे मन अभी भी नए नहीं हुए। Amen? आमीन। Renewal of mind is nothing but when your mind starts to believe what God has already done in your spirit. मन का नया हो जाना और कुछ नहीं है, बस ये है कि जब आपको भरोसा हो जाए कि परमेश्वर ने आपकी आत्मा में क्या कर दिया है। Amen? आमीन। When you go next time to cast out a demon, जब अगली बार दुष्ट आत्मा निकालने जाओ, go with this realization that Is- I am one with Christ. इस बात को जानकर जाना कि मैं मसीह के साथ एक हो चुका हूं। Usually what happens is when somebody in the church calls somebody, the demon is manifesting, can you come? They're like, okay, give me 2 days. What are they doing? In 2 days they think, I'm going to confess all the sins, rectify my life, because I don't want to get a slap from demons. अगर कोई कॉल करे कि भाई यहाँ पर दुष्ट आत्मा है आकर निकाल दो, तो बोलते हैं अच्छा मुझे 2 दिन दो, मैं 2 दिन के बाद आता हूँ, क्योंकि वो 2 दिन में अपने सारे पापों का अंगीकार करके अपने सारे जीवन को परमेश्वर के सामने ठीक करके तब जाना चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा से थप्पड़ ना पड़े। Because their trust is in their righteousness. क्योंकि उनका भरोसा अपनी खुद की कमाई हुई धार्मिकता के ऊपर है। Demons aren't afraid of you because you have prayed for 4 hours. They are afraid of the one who lives in you. दुष्ट आत्माएं आपसे इसलिए नहीं डरती कि आप 4 घंटे प्रार्थना करके आए हो, दुष्ट आत्माएं आपसे इसलिए डरती हैं क्योंकि जो आपके अंदर रहता है उससे वो डरती हैं। Again, don't hear what I'm not saying. जो मैं नहीं कह रहा वो मत I'm सुनना। not saying don't pray. मैं ये नहीं कह रहा प्रार्थना मत करना।
I am saying मैं ये कह रहा हूँ prayer is a fruit of our union with Christ. मसीह के साथ एक हो जाने का फल है कि हम प्रार्थना करने वाले होंगे. Because if we don't pray from this revelation, क्योंकि अगर इस प्रकाशन से हम प्रार्थना नहीं the करेंगे fruit of that prayer will become judgmental and will qualify and disqualify people. तो उस प्रार्थना का फल ये होगा कि हम हर एक को तुच्छ समझेंगे और हम लोगों को धार्मिक या धार्मिक नहीं कहेंगे उनकी प्रार्थना के द्वारा. You know, one time, it's very controversial what I'm about to say, जो मैं कहने वाला हूँ बहुत ही विवादास्पद बात है. but yeah. So I was teaching in a Bible college, मैं एक बाइबल कॉलेज में सिखा रहा था and there we started talking about baptism. और वहाँ हम बपतिस्मे की बात करने Oh लगे. man, I'm touching something very sensitive. मैं कुछ बहुत ही संवेदनशील छूने वाला हूँ. So we were speaking about what are the qualifications of baptism. और हम बात कर रहे थे क्या योग्यता है बपतिस्मा I लेने said के the लिए. only qualification for baptism is that a person believes in the Lord Jesus Christ. मैंने कहा एकमात्र योग्यता बपतिस्मा लेने की ये है कि जो व्यक्ति ले रहा है बपतिस्मा वो प्रभु यीशु पे विश्वास And I करता said, हो. one time a guy came and he was smoking. और मैंने कहा एक बार एक व्यक्ति आया जो सिगरेट पीता था And he loved the Lord. और वो प्रभु से प्यार करता था. And we gave him baptism. हमने उसको बपतिस्मा दिया. And there was one pastor there. And he और- got very furious. और एक पास्टर थे वहां पर वो बहुत ही गुस्सा हो गए. He said, you gave baptism to somebody who was smoking, उन्होंने कहा आपने बपतिस्मा दे दिया एक ऐसे व्यक्ति को जो सिगरेट पीता था, who was still living in sin. जो अभी भी पाप में जी रहा था. I said, Pastor, with all due respect and honor, मैंने कहा पास्टर जी बहुत आदर के साथ आदर when did you take baptism? आपने कब बपतिस्मा लिया था? He said 1970 something. उन्होंने बोला 1970 कुछ में. I said, have you sinned after that? मैंने पूछा क्या उसके बाद आपने कभी पाप किया है? He said, हाँ गलतियां तो सबसे होती हैं, So he said yes, everybody makes mistakes. पर प्रभु का ग्रेस है. पर मैंने कहा पास्टर वही ग्रेस उस बंदे को भी दे दो. But the grace of God is there, and I said give the same grace to that guy also, pastor.